Atma Namaste, God's Love Channel, Cheryl. I'm so happy to welcome you all to God's Love family. We have a few people who are new to the family. I'm more inclined towards it. So I'm learning new things so somehow when your this ad came in front of me, like DNA thing. So then I was more inclined towards this thing. What is it? I wanted to know about it. Very nice. And I wanted to know about you also because I read about you. So, what is Samadhi? How you got enlightenment? Matlab, I wanted to know all these things. Yes, sure, sure. We will 100%. I will give you more details about myself. Uh, thank you very much. So, today we are going to understand more about the Mahashivratri and Shiva and Ma Parvati, and a little bit about myself as well, but mostly about the Mahashivratri and how we are going to go about it. In the last few years, I've realized that spirituality is beckoning me, and I don't like anything else other than that. Anybody who talks, I want to talk about spirituality only. Nothing else really matters to me. Although I am a practical person, so I'm working, I'm doing other things, but this comes on top priority for me. Very nice. Spirituality is something we feel so strong, something which we don't know what is that something, but we feel as if without this we cannot really, um, you know, work. We cannot. Actually, I realized that since childhood, I've been trying to do this only, but several circumstances was keeping me away from it. Now I want to just leave everything behind and just concentrate on this. Very nice, very nice. So nice. So today we will start with the uh, more detailed or more deeper understanding, spiritual understanding of Mahashivratri. Atma Namaste, God's Love Channel, Cheryl. I am a spiritual teacher and I am an enlightened being. In 2013, I got enlightened, and a lot of things in my life changed. Rather, everything changed. And I went through a very profound, very powerful um, trance or something which I don't have words for. So um, during the 1.5 months, and then eventually during 1.5 years, I started to understand or know. There was a knowing, there was no believing, there was no trusting, there was no having faith, but real knowing what is what. And God was so grateful, is so grateful. He took me through the whole process after my memory loss and after everything that I did not have memory of. He took me through each and everything in reality in life, and I was given the truth. So now we are going to celebrate the Mahashivratri. Mahashivratri is basically of one single night. It's a marriage between Shiva and Mahaparvati. So, what does this have to do with spirituality? Are we going to fast all day? Are we going to sit into meditation all day? Are we going to um, chant all day? Are we going to sit erect all day? No. This is a whole process where on the Mahashivratri we are going to be in unison, or we are going to be in marriage. So, what is this marriage about, or what is this spiritual marriage about? So, in our life, when we are born, you, me, when we are born, we have everybody, every human being. Everybody else is also, but we are talking about human beings. Every human being has a singular one, at least one. There are so many life purposes, but one single major life purpose. Major life purpose. And this life purpose is not given on the platter. This life purpose is like a
hidden gift. Nevertheless, we all are given a major one single or two major single life purposes. And many times, there are so many of us, we have got connected with our life purpose, but still we are not happy. Why? Because there is no money, there is no abundance to take care of our life purpose. We are like, um, we have purpose, but we don't have money. So we need a lot of money to fulfill our life purpose. Good. Then there are so many of us who have loads and loads and loads and loads of money, but we are feeling empty from our heart. We feel that what do I do with this money? Nothing can satisfy me. So there are so many people who are so rich, they go on a, a buying spree. They buy this, they buy that, they try to find satisfaction outside their existence by buying things, by doing something of the or this or something like that, buying, or they eventually become hoarders, they become greedy, but still they are not happy in their hearts. And what is the issue? Because they are not connected with their life purpose. So here, how is life purpose and the abundance connected with Shiva and Ma Parvati? So we come back to our Hindu culture or our Hindu scriptures. In our Hindu scriptures, everything is coded. Nothing is given directly. Whatever is seen is not the truth. Whatever is the truth is not seen. So everything is coded. Okay, so all gods and goddesses are coded, and so is Shiva. So when you start to understand Shiva, when you start to know Shiva, when you start to realize what Shiva is, you will come to know that Shiva is our life purpose, or the Adipati, or the God, or the mm, carrier, or the commander of our life purpose. Means he has control of our life purpose. Also, he is the life purpose. Okay, I don't know how to put it more better, but he is the life purpose. And to change life purpose, to connect to our life purpose, we have to go to Shiva, right? So that is how it is when we are uh, having abundance or not having abundance. So whatever we are born with, the human body, the Mother Earth, all those aspects of Mother Earth, the material world, everything is about Ma Parvati. So Ma Parvati is the Shakti, the material world, the abundance, and Shiva is the purpose. Ma Parvati is the provider, and providing for what? So that we fulfill our life purpose. So all those people who feel that no, there is something which I don't understand, I don't know what is it that is not making me happy. If you see, there are so many poor people, they don't have money. There are so many poor people, and when you look into their eyes, when you look at them, you feel they're so happy. They don't have money, but they are so happy. But whatever their life purpose is, they are fulfilling that life purpose first. And for their life purpose, the money is already given. Even if it is less money according to us, कि छोटा सा ही तो घर है, बट उतना ही उनका लाइफ पर्पस है, उतना ही उनका बन रहा है, मतलब that is what they have to go through. The world is a huge world, abundant world, and there are many, 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 many
aspects to this beautiful world. And so wherever, whichever, whoever is at, they have their own personal life purposes, and they have this um, providence, means they are provided with the financial or the support system. Financial is not the right word, the support system. Yeah, material support system. So today when we understand about Shiva, and I want you all to ask me questions about that, that how is Shiva. So getting into this more further, we all have this beautiful physical body. We have the auras, you must all know. uh, we generally have, all who have learned Reiki or understanding of the auras and chakras. So we have aura, we have 7 layers at least to 9 layers. Then we have chakras and 7 chakras, ballpark. Then there is one chakra which is above our head. Yeah. The moment you raise your hand above your head, and wherever you feel, that is the Shiva, the soul star chakra. So you can just close your eyes and feel. Just close your eyes and feel. Yeah. You can raise both of your hands and feel. And then if you chant Shiva, and if you bring your awareness, you can tap here and then bring your awareness. And in your heart, smile and chant, or rather call upon Shiva. I'll give you a few moments. Thank you, thank you, thank you. Anybody would like to share your experience? Ankita, would you like to share your experience? Ma'am, I didn't had any such experience. No problem. Are you feeling your head little heavy? Yes, That that I'm feeling. you just move your head a little bit. ज़्यादा जोर से मत हिला, हाँ. Just you move your head a little bit. You will not be able to move a lot. You'll just feel little heavy head. Yeah. Why this heaviness, ma'am? Sorry. Why this heaviness? Because you have
now connected outside your head, your basic being. You're going up. Your awareness is now really going up, and you're connecting with the Shiva. I will give you more wow moments. So, do you remember when Ravana, yeah, when all the Shiv Bhakts, when Prahlad, they all, when they were meditating on Shiva, do you remember the pose they would do this? And then when they would do Prachanda sadhana, Prachand means super fast sadhana. How would they do it? They would not sit and they would not do that. They would do One leg. Yes. and on one leg. They would do this, connecting yin yang, connecting on their head, Mm. yeah, and on one leg. What is the meaning of one leg? They are nearly disconnecting from Mother Earth. They are going beyond the worldly things and connecting only to the Shiva, the highest of spiritual, or you could say the purpose. Why not spiritual? Because it is not the right time for us to understand spiritual. Okay, right now we are connecting with the Shiva. So this is how, when you start to connect with Shiva, when you see other bhakts connecting with Shiva, and when you see it, you are there, right? There you also, we have a lot of spiritual people here. Shiva is one of the gods where they also pour, or where they also offer non-veg and also alcohol. Yeah, what does it mean? It means that Shiva cannot, cannot, cannot be impure. Yeah, it cannot be dirty, or cannot be uh, polluted. Shiva is absolute, means the purpose of life is absolute. Nothing can pollute the life purpose. Nothing can remove the life purpose. If not this life, then next life, then next life, we have to fulfill our life purpose. So what it is, what is, something like that. What is what, you have to fulfill it. And so there are many times that in the Sati also, her husband died. Again, I forgot the name of the lady. When the husband died, she called upon Shiva and she said that I want my husband to get his life back. Yeah, and he gave the life back, because that was the way he can handle it. He can do such kind of miracles, putting life back into the body. Why? Because the life purpose needs to be fulfilled. So this is about the Shiva. There are so many other aspects also, but here we are understanding Shiva as the life purpose, the god of life purpose. We cannot call him the deity. We can do call him the Adhipati of life purpose. Secondly, the birth of Ganpati ji. Do you all know how Ganpati ji was born? You know the story? Shiva went off to the Himalayas. He went into Samadhi. Yes. So he was detached basically from Ma Parvati, and Ma Parvati got angry. That what do you think?
that without you I cannot have child or I cannot become a mother. So she went to Samadhi, and then she, through her self, uptan, or she did not take bath for a long time, and through her own body cells, she breath breathed life to a child. So the child was only from the mother, not the father. So that means that the child was from the material world, but no life purpose. So there was a manifestation, there was some creation without a life purpose. And that is the time Shiva came in and he said, "What is this?" And so he cut off the head of Ganpati ji, and then he brought his own personal head, whatever the story goes, and he put life purpose onto the material thing, that is the Ganpati ji was born at that time. So before that he was a purposeless being, and after Shivji came in, that is why he, in the whole world or the whole universe or the Brahmand or beyond, it is always known, or Shivji always says that there is nothing called as Khandit. कुछ भी खंडित नहीं है, means there is no thing which is broken, because even when it is broken, it's like it has a different life purpose. So if I break this glass, right, if I break this glass and it is into 2 or 3 or whatever, there are different life purposes for all the 4 5 uh, pieces of this glass. That is why nothing is khandit. Everything is akhand, means absolute, means it has a life purpose and it has a material. When there is no material or no manifestation, no materialization, then there is no life purpose. So anything that is born, created in the whole universe, even just a spark, even this, when I make this noise, this also has a purpose. Nothing is purposeless. Yes. So this is how the whole creation is made, and the whole beautiful creation of life purpose and the material world, or the manifestation of that, the physical body, this is called the yin yang, or the Shiv and Shakti, or Shiv and Ma Parvati. And when both of them are in unison, because what happens is that this glass may be in 4 pieces, but it has not met its purpose. It is far away from the purpose. Like we human beings are very, very far away from the purpose. We feel purposeless. Pata nahi kya hai. We feel hopeless. What is the meaning of hopeless? That we feel purposeless actually in the real sense. And that is why when we start to chant Shiva, we automatically tune into our life purpose. And many times we in our heart feel that this is my life purpose, but I don't know how to go about it. I don't know how to materialize it. I don't know how to put it in existence. And that is the time we go and chant, or we connect with Ma Parvati. So the 13th chakra is the Shiva. Then who or which chakra is Ma Parvati? So we all have the earth star chakra, which is under our feet. So we have palms of our feet, and then here between the 2 palms there is one single chakra here, which is 1.5 feet away. That chakra is the earth star chakra, which is called the Ma Parvati. So the 13th chakra is called the Kul Dev, and the earth star chakra is called the
Kul Devi. So if you see in your surroundings all those people who are Devi Bhakts or who are very strongly connected into or to their Kul Devi, they all have a lot of money. Have you ever seen that? Yes, Didi, I saw this. Hmm? Ma'am, I am a Devi. Sorry? I am a Devi Bhakt, but I don't earn. Yes, but then now you will earn. There are so many other blockages. तो इसीलिए but देवी भक्त किस तरह से? Is she your कुल देवी? Ma'am, I always believe like Kul Devi, हाँ मतलब Devi is a Kul Devi, but मतलब in both our houses Devis are only worshipped. But I believe in Ma Kali, so I worship her. So believing and you have to go and ask कुल नाम है ना? Yes, ma'am, both. Like in both our houses, in my father, in my husband's house also, in my house also. Like we are Devi बस only. Like Devi को ही हम पूछते हैं. हाँ, बट आप उनको पूछिए कि हमारी कुल देवी कौन है? Uh, देवी है, दुर्गा माँ ही है. दुर्गा माँ है. The दुर्गा माँ रूप. Okay, so now when we do this Mahashivratri, you will see the changes in your life. है ना? So now we come to the blockages of Kul Devi and Kul Dev. So many times, many, this basically is also connected to the ancestors, the Kul, right? So when we say that ancestral blessings nahi hai, ancestral issues hain, pitru issues hain, to kul dev ke issues hote hi hain. There are so many times that we have these issues where we are detached from our life purpose, and when we have our kul devi, we are also detached from our kul devi. We don't get the grace of our kul devi or our deity, our mother. Yeah, many times these blockages become huge and big, and then we don't get married, we don't have children, we don't have um, uh, a lot of money. These kind of issues start to come when our Kul Devi is not in sync, right? So, how do you understand the energies of Kul Devi? If you feel strongly grounded into the Mother Earth, you feel strong. If you keep on falling, that means that you are not in balance with your Kul Devi. How many people you feel that, oh, मैं गिर जाऊंगी, I'll fall down, I'll fall off? How many of people feel that way? If you feel that you will fall, sometimes when you're walking, you will fall. That is the time you are not connected, you are not grounded with the Kul Devi. The moment you are very strongly grounded into the Kul Devi, you will be solid. And here we don't want to just do one thing, that we have a lot of money and we don't have purpose. This Mahashivratri, we are going to activate our Earth Star Chakra, activate our Soul Star Chakra, and simultaneously in our hearts or the heart chakra, we are going to have a very beautiful marriage. Then sync our life around our purpose and abundance. Okay? Any questions do you have? दीदी, आपने कहा कि हमारी कुलदेवी के साथ हमारा एक कनेक्शन होता है और वो हमें अबंडेंस की ओर लेके जाते हैं। हाँ. पर सपोज़ जबकि मेरे घर पे चामुंडा माँ है और मेरा कनेक्शन विद खोडियार माँ या माँ सरस्वती से ज़्यादा है। तो हम तो यही मानते हैं कि सारी देवियाँ एक ही है, कोई अलग नहीं है। पर क्या हर एक की एनर्जीज़ डिफरेंट है, जो हमें अबंडेंस की ओर लेके जाती है, या जो हमारी कुलदेवी है, उनकी एनर्जीज़, माँ सरस्वती की एनर्जीज़, माँ खोडियार की एनर्जीज़ आर डिफरेंट, 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 और उसकी वजह से हम सिंक नहीं हो पाते, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ. So all the energies, Roop. So all Ma Khodiyar, Ma Chamunda, Ma Durga, Ma Parvati, I mean all of them are Ma Parvati. है ना?
आप जब उनका स्टोरी यस, पढ़ेंगे तो वो माँ पार्वती का रूप है, नॉट यस मैम। माँ सरस्वती नहीं, बट माँ हुँ, पार्वती के ये सब रूप है। माँ काली, माँ गौरी, है ना? हुँ, संता माता, तो ये जितने भी रूप हैं, वो रूप का मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यस, है ट्रू। ना? और ये हुँ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं, these are, so in the olden times we had a very, we had very strong pundits and very strong astrologers. They would look at us, our charts, and say that you need this grace, matlab you need this frequency, यस, है ना? गॉट इट। यस, So when यस, you हुँ, when you need that frequency, Ma Chamunda frequency, so when you start to chant Ma Chamunda, and if you can do that, you know, bring your awareness in here. अर्स्टा चक्र में। Yes, Earth Star Chakra. And then ओके, when you sit and you chant Ma Chamunda, and I don't know what is a chant of Ma Chamunda, I don't know where to get no problem. हुँ, Best chant is Ma. ओके, So I don't know which frequency I need. I don't know who is my Kul Devi. I don't know nothing. All you know is with lot of love, you just chant Ma. Or rather, I will not even say chant. Don't even chant. Just call ओके, Ma. So, like Bubbly right now, she's not well. Why is she हुँ, not well? Because she's not connected or grounded well into the Mother Earth, right? She needs to हुँ, be healthy, 100% she needs to be healthy. So, what does Bubbly do? Bubbly does not know anybody. I don't know whom, what to do. I cannot remember the chants, nothing. Just in your mind, in your heart, just chant Ma. Ma, please heal me. Ma, give me abundance. Yeah. The moment you really connect with your or our mother, she will provide. जैसे हम स्कूल से आते थे, our mommy knew what my हुँ, child wants. She will always cook. She'll हुँ, always keep things ready in हुँ, all the capacity that okay, my child is coming home, she will be hungry, so she already loves us unconditionally. All we need is to connect to her, go home. Yes. So the यस, moment we start to say, Ma, I love you, Ma, take care of me, Ma, take care of my physical body, automatically you will see a lot of changes. Also, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम is the like 2-3 days, since 2-3 days, that is what I'm starting to realize. सबसे बड़ा problem is the ego. So when Ma takes care of us, we say no, 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 no. And in such a easiest in the in the, we just need to be sharanagati, in unconditional sharanagati. कोई दे रहा है ले लेने का. Don't feel guilty. अच्छी चीजें कोई दे रहा है तो नहीं, don't feel guilty, don't feel sad, don't feel bad, just allow them to give us the grace, because the moment छोटी छोटी चीजें हम लेते हैं, when we allow the gifts to come to us, then bigger gifts will come. What we do is, the moment ma is abundance, okay? The moment she starts to bless us, everywhere we go, we'll have abundance. People will love us, people will take care of us, and we'll be like, Ore Bapre, why is he being so loving? Why is he being so caring? Why? Your energies are changing. Relax. दीदी, दिस हैपेंड विथ मी जस्ट इन द इवनिंग। आज सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है एंड यू आर नोइंग कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, राइट? तो मैं शाम को ऐसा मैंने चाय बनाने के लिए ट्राई किया और चाय मतलब पूरा फट गया। तो भी वो मैंने मतलब पनीर का पानी समझ के पी लिया कि ठीक है, मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए।
फिर 1 घंटे के बाद सामने के डोर से आंटी आई, मैं यहाँ पे 12 दिन से हूँ, लेकिन द फर्स्ट टाइम वो नेबर आई और बोला कि चलो तुम्हारे लिए थेपले बनाए हैं, चाय बनाए हैं, तुम खा लो। पर वो अपने लिए वापस चाय रखने जा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। जैसे मैं अपने घर कॉफ़ी बनाने के लिए आई, साईं बोलते तुम्हारे लिए चाय और थेपले रखे हैं, तुम जाके खाओ। और फिर मैंने कहा आई एम सॉरी, उनको भले तकलीफ हो रही है, कुछ भी हो रही है, लेकिन साईं ने अगर मेरे लिए भेजा है तो मैं खाऊँगी। और फिर मैंने वहाँ पे जाके वो खाया, मतलब सेम ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे भेजा और मैंने ये नाटक किए और फिर वापस उन्होंने कहा कि जाओ जाके खाओ। तो क्या तुमको यहाँ पे पढ़ने भेजा है कि टाइम पास करने भेजा है कि एन्जॉय करने भेजा है पढ़ने के लिए? ऐसे सही में, स्टडी तो चुपचाप बैठ के स्टडी करो, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। सो ट्रू। भूख लगी तो किसी के घर में घुस के खाना खाओ। सब अपनी फैमिली है। सच में ऐसा हुआ कि उन्होंने बना के रखा और फिर चाय भी बनाई, जो मेरे हाथ से चाय बिगड़ गई थी, तो उन्होंने चाय भी बना के रखी और मैं वापस यहाँ पे बनाने के लिए आई तो कहा जाके खाओ चुपचाप। तो क्या, है ना? सो वी डोंट इवन रियलाइज हाउ इडियोटिक ईगो, आवर इडियोटिक का मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज अ इल्यूजन। ईगो इज अ रियल इल्यूजन, ईगो इज द रियल माया, है ना? तो अगर माया से निपटना है तो ईगो कचरे के डब्बे में डालो कि भाई तू वहां पे अच्छा है ना? डज नॉट मीन दैट कोई आपको लात मारे तो लात खाओ, ये लोअर ईगो है, ये नहीं, ये हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड मीन्स बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, है ना? तो वैसे कोई हमें कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, बट हम लोअर ईगो में तो बहुत अच्छे से घुस जाते हैं, बिकॉज ईगो सेटिस्फेक्शन होता है कि देखो सैक्रिफाइसिंग ईगो होता है ना, टीवी सीरियल वाला, वो भी अच्छी बात नहीं है। है ना? तो हमें रखना है अच्छे वाला ईगो, बट अननेसेसरी मैं खुद कर लूंगी सैक्रिफाइसिंग ईगो, ये सब नहीं रखना है। ठीक है? सो एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग टू से? Yeah, ma'am. As I am not from a Hindu family, तो मतलब ये जैसे मतलब सब हिंदूज में होता है, मैंने यहाँ देखा है कि हम लोगों में कभी ऐसा नहीं था कि कुल देवी होती है या कुछ होता है। मतलब बचपन से हमको बाबा जी हैं, बाबा जी को अरदास करनी है, बस आई एम सिख, हाँ, तो हमेशा यही सीखा है। बट मेरी दादी माँ जो थे, मतलब माय फादर्स साइड, दे बिलीव कि माता, वो लोग माता की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। हम लोग तो आज तक नहीं करते बिकॉज हमको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। वेरी नाइस। तो तो कैसे है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच बबली जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो जब दिस इज अबाउट द हिंदू कल्चर, हिंदू स्क्रिप्चर्स, कि हिंदुइज्म इज अबाउट द चक्रास एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस एसोसिएटेड विद द चक्रास। अब हो गए मुस्लिम, सिख हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो हम जो नॉन हिंदूज हैं वो क्या करें? बहुत ही सुंदर और सिंपल बात है। हमारे जो गॉड नहीं बोल सकते, हमारे जो पैगंबर हैं, बिकॉज बाबा जी इज ऑल्सो अ मैसेंजर ऑफ गॉड, या वो अ, अपनी दिव्य वाणी लेके आए हैं, वो भी बुक को प्रेफर करते हैं या बुक को यू नो बुक के थ्रू जाते हैं। तो हमने उनको हमारा शिव जी भी बना दिया, उन्हीं को हमारा माँ पार्वती बना दिया। सो द मोमेंट आप उनको अरदास करेंगे और उनको कहेंगे, तो वो दोनों आपका अर्थ स्टार चक्रा और आपका सोल स्टार चक्रा दोनों के ऊपर काम करने के लिए तात्पर है एंड वेरी वेरी हैंडी है। क्योंकि आप जब बाबा जी को बोलते हैं या बाबा जी से यू नो बातें करते हैं, रियल प्रेयर करते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि कभी आपको एक फादर वाली फीलिंग आती है उनकी तरफ से, और कभी मदर वाली फीलिंग आती है उनकी तरफ से। फादर वाली मैम।
हाँ, मोस्टली तो वो है। कि आपका माइंड is connected with the logical thing that he's a father. Yeah, maybe. The moment you leave the photograph and leave, तो बाबा जी को ओरिजिनली देखेंगे तो ही इज द फादर ऑल्सो एंड ही इज Yeah, द मदर ऑल्सो। right. तो अगर आप माँ के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या आपके पास कोई देवी नहीं है या यू नेचुरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि वी कैन जस्ट कनेक्ट टू एवरीवन, आप बाबा जी से भी कनेक्ट होइए, आप जीसस से कनेक्ट होइए, आप अल्लाह से कनेक्ट होइए, बिकॉज दे प्ले बोथ द रोल साइमल्टेनियसली, साथ साथ में दोनों रोल्स करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी तरफ शरणागति कर ली, हम उनके आ, उनका एक पार्ट ऑफ द डीएनए हमारे अंदर है, फिजिकल डीएनए नहीं, स्पिरिचुअल डीएनए, है ना? तो इसीलिए हम द मोमेंट बोलेंगे जीसस और बाबा जी, है ना? कई लोग गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कनेक्टेड हैं, मैं कभी, बहुत हाँ, ज़्यादा कनेक्ट। तो आप जैसे ही उनको याद करेंगे और फिर आप अपने 13 चक्रा को छुएंगे, अपने अर्थ स्टार चक्र को छुएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत डीपर लेवल पे सेटिस्फैक्शन मिलेगा और यू विल स्टार्ट टू ऑल्सो बिकम बेटर इन योर हेल्थ, बबली जी। ठीक है? एनीबडी एल्स हैविंग क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? यस अंकिता जी, यस रीना जी। नो दीदी, ओके। आपने जो कहा वो एकदम सही था। जब ये खाना आया ना मेरे लिए, तो मेरी आँख में से साईं के लिए माँ के जैसे ही आँसू निकले कि माँ आपने मेरे लिए खाना भेजा। इसीलिए आप देखेंगे तो अ, आप अगर ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन की बात करेंगे, जीसस की बात करेंगे, आप साईं की बात करेंगे या फिर आप गुरु गोविंद सिंह जी की बात करेंगे, सभी ने कहीं न कहीं खाने के साथ एसोसिएशन है। हाँ, साईं का भी खाना ऐसा हाँ, अनलिमिटेड खाना है ना? हाँ, हाँ, जिसने भी अपने जो भी अपने लाइफ में अनलिमिटेड खाना दिया था। एक समय ऐसा हुँ, आया था कि उनको सबको खाना खिलाना था, 4 रोटी थी और 4 व्हाटएवर जो भी था खाना, वो बनता ही गया। मतलब सब सब मतलब ये वो लोग हमको भाथा देते हैं, भाथुआ आप, हाँ, हाँ, शक्तिपात दे रहे हैं। मतलब दिख रहा है फूड प्रसाद जा रहा है। हाँ, वो प्रसाद दिख रहा है, पर वो शक्तिपात है एक्चुअली। तो वो हम ओके, एक मतलब जितने लोगों ने खाया साईं के हाथों से वो खाना, वो तृप्त हो गए वो। हाँ, दीदी मैं समझ पा रही हूँ आप क्या बताना चाह रहे हो। है यस, ना? यस दीदी। तो यस, यस। ये वो माँ का भाव है। इवन गुरु ओके, गोविंद सिंह जो देखेंगे ना तो लंगर करते हैं, तो लंगर में भी अभी वो लोग सब साथ में खाना बना रहे हैं, पर तभी बाबा जी भी थे और वो भी खाना बना रहे थे यस। और खाना दीदी सबका वैसा ही साईं का भी है। हाँ दीदी, जब हांडी में खाना पकता था बनाते थे साईं, पर हाँ, उसको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग रहते थे। होते थे, तो साईं भी होते थे ऐसा यस, यस, यस। कुकिंग। वो चाहते तो वो बोल देते हाँ तुम खाना बनाओ, नहीं, 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 खुद खुद बना। बनाते थे, खुद बनाते थे। सो इसीलिए उनके अंदर ममता भाव भी है, पितृत्व भी है, ममता भी है, और स्टार भी उसी से एक्टिवेट होता है और सोल स्टार भी उसी से एक्टिवेट होता है या उन्हीं से एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि जब वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनके ऊपर गॉड्स ग्रेस होती है। को याद कर रही हूँ और मैं बोलती हूँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो बंद है। जैसे हम प्रॉमिस्ड आ जाता है ना कि वो शब्द बंद है। द मोमेंट मैं उनको बोलूँगी कि देखो पापा यू हैव टू डू दिस, तो वो ही इज़ रिस्पांसिबल टू डू व्हाटएवर आई आस्क हिम टू डू। द पर फेथ जो है वो वहाँ पे काम करता है। अगर आप अनकंडीशनल शरणागति में है तो फिर तो आएगा हर चीज़ अनकंडीशनली, है ना? तो ऐसा है। एनी अदर क्वेश्चंस?
Okay. So I will give you more details about the Mahashivratri session. It will start from the 29th of this month. Leap year जो है extra दिन उसी दिन से शुरू हो रहा है and महाशिवरात्रि 8 मार्च को महाशिवरात्रि है. तो तब तक हम क्लीनिंग करेंगे, अर्थ स्टार को एक्टिवेट करेंगे, सोल स्टार को हम एक्टिवेट करेंगे. रादर सोल स्टार इज एब्सोल्यूट. उसका जो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी का एनर्जी चैनल है उसे हम क्लीन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और फिर हम हमारी एनर्जीज महाशिवरात्रि के दिन साफ करके रखेंगे. उसके बाद यंग यांग या फिर लग्न या फिर मैरिज होगा ऑन द महाशिवरात्रि. और फिर एक दिन तक शांत रहते हैं. एक दिन मतलब उसके बाद और हम कर रहे हैं हीलिंग बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन इट. और उसके बाद यिंग यांग बैलेंसिंग और बहुत सारा कुछ. फिर रीप्रोग्रामिंग. ये जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस 13 डेज का है और ये जो भी लेवल का है वो परमानेंट है. ऐसा नहीं है कि ये वापस बिगड़ना शुरू हो जाएगा. एक लेवल आएगा, जो भी आएगा परमानेंट है. जो भी नेक्स्ट लेवल होगा परमानेंट है. जो भी नेक्स्ट होगा परमानेंट है. सो इट इज अ परमानेंट वर्क दैट विल बी डन ऑन ऑल ऑफ अस. ठीक है. मैम कैसा परमानेंट वर्क, लाइक क्या लेवल में क्या चेंजेस आएंगे? ये स्पिरिचुअल है. तो अगर मैं मेरे लाइफ पर्पस से नहीं जुड़ी हूँ तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मेरे लाइफ पर्पस उजागर होना शुरू होगा. मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे मुझे पता चलेगा मेरा रुझान किस तरफ है, मेरा इंक्लिनेशन किस तरफ है. वेयर एम आई इंक्लाइन टू, व्हाट आई लव टू डू. अंदर से ही बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाएगी. और मदर अर्थ के साथ जब हम अर्थ स्टार के साथ जब हम कनेक्टेड हो जाएंगे तो जो भी इश्यूज है फाइनेंशियल, फिजिकल, रिलेशनशिप विद सेल्फ, ये जो इश्यूज जो हैं वो भी काफी हद तक रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. तो आपकी लाइफ में वो सब उजागर होगा. इट विल कम फॉरवर्ड, इट विल कम टू यू दैट this is the problem, this is the way you've got to go, this is what you have to do, है ना. and then you will automatically go forward in your life. तो जब यहाँ पे आपको लगता है कि बंधन है, अटक गया है कुछ, I don't know what is the, you feel that there is something which is stopping me, तो ये सब बंधन अपने आप खुल जाएंगे. रास्ता काफी क्लैरिटी वाला हो जाएगा. ठीक है. Any other questions? Ma'am, what actually is enlightenment? What is enlightenment? Enlightenment is the knowing about the truth. Now, what is the truth? Who am I? Who are you? Who is everyone else? And it is not written, kitna bhi if we write in the book, I am God, I feel like God. That is not enlightenment. So when you are enlightened, I will not tell you the answers to the enlightenment because it is a personal experience. The moment I give you a definition, you will seek only that definition. But you will come to know. Like And some people say, like Kundalini activation is the enlightenment. When your Kundalini is activated, then only no. you Kundalini, get the. Kundalini first cannot be There are so many. There are so many side effects of Kundalini activation if you are not getting proper guru. Yes. So proper guru का मतलब ये है कि सबसे पहले तो कुंडलिनी activation is a wrong way to go for an enlightenment. So that means that you are trying to do something which is a wrong way. Okay, so Kundalini activation is a different story. The moment the Kundalini is activated, if at all it is activated, if at all your body allows the activation to happen, if at all you activate it, which is totally impossible in this physical world and in this physical body, but if मान लेते हैं भूल से, God's grace, the first thing you will realize is whatever you say will happen immediately.
So if you say that this water will turn into gold, it will happen. Yes. Then when you say this into this will happen, mouse into a horse, it will happen. A horse into a dinosaur, it will happen. The moment these things start to happen, what will happen? Tell me. Put yourself into Ego will it. come. Hmm? Ego will come. I will think I am the biggest one. So you will start to say, I am. Ankita, Like it. what will you say? God. I God. Yes. that yeah. Then it will be like, because I will be superior one than anyone around. So now, when you are, I'm special and you are not special. Yeah. That is the opposite of enlightenment. So when you are really enlightened with the real enlightenment, you will not have the issue of, or you will not go into this side of being arrogant or aham. So Kundalini activation, sorry, Yes, ma'am, please. yeah. So Kundalini activation is actually anti-God, because the moment, if at all, like किसका Kundalini activated था, तो रावणा का, है ना? और सोने की लंका थी, है ना? I read somewhere like there are only in this जो हर युग में होता है, like जैसे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में there are only selected 6 people. That is actually written in Vedas that their Kundalini will be activated. But nowadays, everyone like through this mandala art, your activity Kundalini will be activated. Through this, your Kundalini वो पॉसिबल will ही be नहीं, activated. Kundalini एक्टिवेट हो ही That's what नहीं, I want to know. useless. What they are targeting to. They are just trying to see. First of all, they don't even know the name of Kundalini, they don't know the spelling of Kundalini, they don't know anything about Kundalini activation. They just have some books written, oho oho ye to ho sakta hai. It cannot be possible. This physical body cannot handle that energy. Jaise your mobile phone is a mobile phone, it cannot handle the energy of transformer. आपके घर के बाहर इतना बड़ा 10,000 किलोवाट का ट्रांसफॉर्मर है, you put that in this mobile phone, it will blast. The Kundalini energy is a transformer, maybe it is even bigger than that. Yeah. Because I read a book that was written by one psychologist who was working in a asylum. So that time I was very small, but that thing is stuck in my mind. Like I was, I think, in 8th to 9th standard. So there was a lady who was pregnant and who was doing this Kundalini yoga, and somehow this got the Kundalini got stuck in her body. Like it's always like somebody just get the click, and some people like they so the Kundalini got stuck in her body, and so she suffered a loss. She got mentally sick. She got mentally sick. So she was in the asylum. But whatever you do, she was not recovering out of it. Right. So that thing is stuck in my mind, and I don't know, after like decade or 2 decades, this thing is again arising. This Kundalini is so like a Zen thing right nowadays. Yeah, because let it be the in thing or out thing, but it is not the right thing. Yeah, because Yeah, that's what. it is, I it is don't want. That's why I'm questioning. Like I we are don't not want going to to get into go. that thing. We are not going to go into useless things. कुंडलिनी अगर एक्टिवेट भी भूल से करना है तो in this lifetime it will take 100 years. How do you do that 100 years? You continuously chant, you continuously clean your physical body. Your chakras should be very beautifully bloomed, all blooming chakras. You should be like कहीं पे भी जाओ तो you should be like कहीं पे जा ही नहीं सकते, मतलब बहुत ही अलग लेवल की बात हो जाती है. एंड यू विल हैव टू गिव अवे लाइक फूड, ये वो मतलब हर तामसिक, मतलब एक लेवल पे एवरीथिंग विल बिकम तामसिक फॉर दिस फिजिकल बॉडी. मतलब योर बॉडी हैज टू बिकम लाइक अ एनर्जी चैनल
all ready to let that energy get out of your body. Now that story that you have read, first of all, उनका कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं हुआ. उसे कहते हैं because she was pregnant. Sometimes the kundalini can leak, हल्का सा leak. ठीक है, वो हल्का सा लीक मतलब एक स्पार्क हो गया बस. तो सोचो एक स्पार्क हो गया, उसमें इतना बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया. And कहाँ शॉर्ट सर्किट होगा? Wherever there is a block. So everything that all the blockages she has in her body, all the nadis, all the chakras, so there are 1,000 blocks. There are 1,000 blocks from our ancestors. And the DNA is blocked already. Because nowadays this cannot happen because already our DNA is blocked. So that is why the Kundalini activation is just a fashion thing. It is just a waste of energy and time. Kundalini activation cannot be possible in this physical body, and it is not the right thing to do. It is going to take everybody down. Everybody means whoever is trying to activate their Kundalini, they will go down. Because what have I done in my life? I have life तो बहुत लंबी थी. Within my whatever God's grace is there have been many people who had just a spark. Okay, not even a spark, just a small little thing. Spark is also a big thing when it comes to Kundalini. हल्का सा मतलब just maybe the Kundalini started vibrating. सिर्फ पता चलना ऐसे. हाँ, मतलब सिर्फ वाइब्रेशन शुरू हुआ. स्पार्क भी नहीं हुआ. The vibration शुरू हुआ and the body started to shrink. मतलब गरम है ना, बुखार शुरू हो गया, 24/7 बुखार, और बॉडी अंदर से जल रहा है. मतलब they feel the heat. They know कि कुंडली में कुछ हो रहा है. They start to feel vibrations. They start to feel so many things. And then they somehow come to me and then उनका कुंडलिनी शांत करके whatever was to be done has been done. So इतनी छोटी चीज भी इतना बड़ा बखेड़ा कर देती है. And I told him that stop this, don't do this, don't do that, don't do this, don't do that. Because first of all कुंडलिनी एक्टिवेट करके करेंगे क्या? The main thing is the purpose. What is your purpose? कुंडलिनी एक्टिवेट करके करना क्या है मुझे बता दो. Is there a purpose to anything? नहीं, मुझे तो शौक है. शौक से कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होते. ये शौकिया चीजें नहीं है. This is not a fashion. It's not a fade. है ना? So ये शौकिया चीजें नहीं है. तो those people who don't have a purpose, then how can they have anything materialized? है ना? Yes. Actually, ma'am, I had a few doubts. The very first thing that I read about you was like you are enlightened by yourself. So I connected many people say like you are only enlightened when your Kundalini is activated. Whatever I read, so I put up this question because of this thing only. Like people say like you are enlightened, so you have activated your Kundalini. Yes. Right. So the same way Sandeep Maheshwari's video is also there, like where he's describing about his Kundalini activation, his heart chakra open and all and all. But he still has an ego, whatever is happening with him nowadays, with the ear, whatever he's doing, he's talking ill about people. So again, I would say that his even if he's enlightened, so he's talking like he says that he is enlightened because his kundalini is activated, and a very video is there. There are many people who say like their kundalini is activated, kundalini is activated. So I wanted to distinguish what is enlightenment and what is this thing. कुंडलिनी इज नॉट एक्टिवेटेड. मैं उसका गारंटी वारंटी के साथ बता दूं, ये बॉडी कैपेसिटी. मैं अगर वेजिटेरियन, मतलब मैं जैन, मतलब मैं वेगन, पता नहीं क्या क्या मैं खाना छोड़ ही दूं. और सबसे पहले तो द मोमेंट वाइब्रेशन भी शुरू होगा ना, आई हैव टू गो एंड सिट इनटू द हिमालयाज बिकॉज इट इज कोल्ड देयर.
That is why those people who are doing the sadhana of the Kundalini activation, I don't know why, but why, whatever reason they are doing it, they are sitting there in the Himalayas without any warm clothes, है ना? Maheshwari ji, he is just पढ़ा लिखा कुंडलिनी एक्टिवेशन. It cannot दीदी be possible. अभी तक वो नष्ट हो चुका होता, मतलब ब्लास्ट हो चुका होता, अगर रियल कुंडलिनी एक्टिवेशन गॉड्स ग्रेस से होता. यस, रीना जी. तो यहाँ पे लोग मुझे बता रहे थे कि चलो आपको पढ़ने का इतना मन होता है, आप पढ़ते रहते हो, तो आप यहाँ पे चलो। तो पहले तो मैंने उनको हाँ बोल दिया कि हाँ, चलो मैं आती हूँ। फिर उन्होंने कहा, मैंने उनको ऐसे पूछा कि टॉपिक क्या है? तो मैं आती हूँ करके। तो उन्होंने कहा कि आत्मा से रिलेटेड बातें हैं। फिर मैंने वहाँ पे 1 मिनट पॉज़ लिया, बातें करनी है, ज्ञान लेना है, तो जाना है। तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ है क्या? आई सेड यस। तो फिर तुम्हें जाना क्यों है? तो ये संदीप माहेश्वरी की जो बातें हैं दैट ऑल आर द बुक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ-वहाँ से कलेक्ट करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। ऑफ नहीं कोर्स सही वो है। नॉलेज से इतना ज़्यादा अपडेट होते हैं कि आपको लगे कि अरे वाह! क्या बात है। पर जब हम उनको पूछते हैं डिड यू एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस में क्या हुआ? तो मुझे नहीं पता वो लोग क्या आंसर देंगे। पर मतलब मेरे साथ ये हुआ, भगवान ने मुझे 3 क्वेश्चन पूछे, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप दीदी एकदम सही बता रहे हो कि लोग नॉलेज से बहुत ज़्यादा अपडेट हुए हैं, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है अभी की टाइम में। आप अगर स्पिरिचुअलिटी लेने जाओ या टेक्निकल वर्ल्ड में जाओ या मशीन वर्ल्ड में जाओ, जो भी है, हर चीज़ का फुल फ्लैश नॉलेज सब जगह पे बँटा हुआ है। पर जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो एक्सपीरियंस में लोग कहाँ तक पहुँचे पता नहीं। और अगर किसी की कुंडलिनी एक्टिवेशन हो गई है, तो जैसे दीदी आप बता रहे हो कि हिमालय में या मैंने देखा है दीदी, मैं जब गिरनार जी गई थी और वहाँ पे जैसे हम बैठते हैं तो हमारी हाइट कितनी होती है? खाली अपने अपने हाथ की जितनी, राइट? तो मैंने उस गुफ़ा के अंदर संत लोगों को इतनी ठंडी में, कितना हील पे है वो, और वहाँ पे पूरे पहाड़ एरिया में उनको बैठे हुए देखा है। और फिर वो मेडिटेशन करते हैं और वो जो भी उसमें करते हुए, तो वो लोग बाद में मतलब वो कहते हैं कि ये अपने आप होता है हमारे अंदर। हम लोग सिर्फ़ मेडिटेशन करते हैं, हम लोग खाली शिवा का चैंट करते हैं, क्योंकि वो सब शिवा के फॉलोवर्स हैं। तो वो शिवा का सिर्फ चैंट करते वहाँ पे। पर वो ऐसे फिज़िकल बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं करते। इट्स जस्ट कि हमें दिखता है कि वो मेडिटेशन में हैं, और हमारे लिए मेडिटेशन का आज के ज़माने में यही मतलब है कि हम चक्रास के ऊपर काम करते हैं। पर वो लोग विदिन जाते हैं और वो अपने आप जो चक्रास में चेंजेज़ होने होते हैं बॉडी में, वो हो जाते हैं। तो जब वो जन्म लेते हैं, ये जब वो जन्म ले रहे थे, इस जन्म में आ रहे थे ना, उसके हुँ, हुँ। पहले वो उन्होंने भगवान को बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ़ आपकी साधना करनी है ना? तो उनका जन्म कैसे होता वो उनको खुद नहीं पता। उनके माँ-बाप कौन हैं उनको खुद नहीं पता। अगर माँ-बाप हैं भी फिज़िकली, क्योंकि कार्मिक अगर कुछ है लेन-देन, तो उनके माँ-बाप होते हैं, पर जैसे आप और मैं कितने कनेक्टेड हैं अपने मम्मी-पापा से, है ना? वैसे वो नहीं होते। जैसे अपना 2-4 साल हो जाता है, वो अपने आप गायब हो जाते हैं और अपने आप चले जाते हैं। दूसरी बात कि इनको आप थोड़ा और ध्यान से, अगर ख़ैर कोई बात नहीं करेगा, बट अगर भूल से आपके साथ किसी ने बात कर ली या आप कनेक्ट हो गए किसी से, तो वो खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ इस जन्म में साधना करने आए हैं। और ये पूरा जो उनका एनर्जी, मतलब उनका जो बॉडी चल रहा है, वो सिर्फ़ कॉस्मिक एनर्जी की सिद्धि से चलता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से वो उनके गुरु होते हैं, या कहीं न कहीं उनके हिसाब से इंटरनल गुरु भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल गुरु भी हो सकते हैं। इंटरनल मीन्स परमात्मा खुद, एक्सटर्नल मीन्स एक रियल गुरु जो फिज़िकल बॉडी में हो, वो उनको जो भी एक मंत्रोच्चार या जो भी दे देते हैं, उससे उनकी टंग ऊपर करके जो भी उनका साधना का वो होता है, उसी से वो खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। मतलब उनकी भूख की तृप्ति हो जाती है, उनका बॉडी को और किसी बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, मदर अर्थ प्रोवाइड कर लेता है।
उनको, और वो उसी तरह से तपस्या साधना कर रहे हैं, है ना? और जो एनलाइटेड है, जो ये मैं एनलाइटेड हूँ, तो ये जो एनलाइटमेंट है, इट इज नॉट फिजिकल बॉडी एनलाइटमेंट, ठीक है? यू कुड से सो फॉर द फिजिकल ह्यूमन बींग्स, हम जो है हमारी समझ के लिए हम बोल सकते हैं एनलाइटेड, पर एनलाइटेड क्या हो रहा है, मेरा फिजिकल ब्रेन कि उसको अब वो चीजें दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, जो नॉर्मल लाइफ में हमें समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती, उसको समझ आ, मतलब लाइट हो गई, नो, एक लाइट बल्ब जल गया, उसे एनलाइटेड बोल सकते हैं। और द ट्रूथ इज दैट आई एम इन द मोक्षा। मोक्षा किस चीज को मिला है? मेरी कॉन्शियसनेस को मोक्ष मिल गया है। अब मैं वापस नहीं आऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं So, ma'am, your family connection? कार्मिक कनेक्शन नहीं है मेरे अभी। Ma'am, family connection, like family. फैमिली है ना। Like moksha is completely different, family is completely different. नहीं नहीं, मोक्ष इज ऑफ द कॉन्शियसनेस। फैमिली, ये जो मेरी फैमिली है, ये मेरे बच्चे जो हैं, उनके साथ, मतलब ये फिजिकल बॉडी है ना, तो फिजिकल बॉडी को रखने के लिए ये मेरे कपड़े हैं, उनके साथ भी तो कनेक्शन है। ऐसा थोड़ी ना है ये मोबाइल है, ये एसी है, ये लैपटॉप है, ये ज़ूम है, सबके साथ मेरा कनेक्शन है, नॉट द कार्मिक, बट दे आर माय सपोर्ट सिस्टम। सो अभी दे आर माय फैमिली। I cannot deny this family, and we all are together in this service towards humanity, है ना? और ये जो एनलाइटमेंट हुआ है, वो तो खैर मुझे बाद में पता चला। पहले तो मुझे वननेस विद द परमात्मा हुआ, दैट इज द रियल मोक्षा। समाधि हुई, दिस इज द रियल कनेक्शन, द वननेस, द कंटिन्यूअस वननेस विद द परमात्मा। दो अब मैं डिटैच नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो। Ma'am, what is samadhi? समाधि Sorry, मीन्स, ma'am, to bombard with so many questions. no problem, everybody is okay with it. I hope everybody is okay with it. Yes. दीदी, आई एम ओके। Yes, ma'am. Okay, so samadhi is a continuous state of oneness with the paramatma. So हम लोग मेडिटेशन करते हैं, आपने कभी एक मोमेंट ऑफ ब्लिस एक्सपीरियंस किया है मेडिटेशन में? Yes, ma'am. क्या मजा आ गया। फिर नीचे आने में, बाहर आने में कितना त्रास होता है कि अरे बाप रे, ये क्यों मन मैं। नहीं करता है वापस आने का। क्यों आ गए बाहर? नहीं आना चाहिए था। हाँ, तो मैं वापस नहीं आती हूँ। मैं वहीं रहती हूँ। मल्टीटास्किंग सीख लिया है मैंने। और ये जो मैडम दिख रहे हैं, रीना जी, वो भी वहीं रहते हैं, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ समाधि। इसलिए वो बोल रही है ना कि बाबा जी ने ये कहा ना, साईं ने वो कहा ना। आप रीना जी को पूछिए, रीना जी व्हाट इज समाधि? सो समाधि का मतलब क्या है कि हम है ना जनरली मेडिटेशन करते हैं। पहले तो मेडिटेशन में देखो, जो मेडिटेशन अभी चल रहा है उसमें एकाग्रता जो एक क्षणिक होती है, जैसे हमारी अरुणिमा जी है, वो तो शिव भक्त है, तो वो जो जब वो कनेक्ट करती है ना शिव जी से, ओ हो, फिर वो वापस नहीं आना चाहती है। वो मतलब छूटना नहीं चाहती अपने इष्ट से, वो सेपरेशन दर्द होता है। तो मैं भी वो सिचुएशन में थी। इतना पेन, इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, जो सह नहीं सकते। रीना जी रो के, रूही जी भी रोते हुए, पर इतना ज़्यादा सेपरेशन जो है, वो सह नहीं कर सकते। और फिर गॉड्स ग्रेस हो गया कि हम मर्ज हो गए गॉड से। तो पहले जो मेरी लाइफ थी, उसमें मैं ऐसा देखती थी, है ना? तो मेरी जो परिभाषा, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी जो जो भी आप सोच सकते हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे उसे, नॉलेज, पता नहीं क्या बोलेंगे, नोइंग, वो ऐसी थी। हाँ, ऐसी थी। और जैसे ही गॉड कनेक्टेड हो गई, फिर जैसे ही दिमाग वापस आया थोड़ा सा, क्योंकि मेरे मेमोरी लॉस हो गया था ना, तो जैसे ये मैम, था। कैसे मेमोरी लॉस?
फिर वो ऐसे हो गया, जब मैं वापस नॉर्मल आई, क्योंकि मैं बहुत अलग लेवल के ट्रांस में चली गई, तो उसे ट्रांस बोलो क्या बोलो मुझे नहीं पता, एक्चुअली में बट दीदी ये बताना चाह रहे हैं कि जब वो इस तरह से हुए, एनलाइट हुए, उससे पहले तक उनको दुनिया ऐसे पास में मतलब छोटी दिखती थी, हर चीज को उतना ही समझ पाते थे जितना वो दिखा रहा है। पर हाँ, जैसे उनका एनलाइटमेंट हुआ, वैसे वो हर चीज को देख पाते थे जो उसका रियल एसेंस है या उसका रियल मतलब है। और मेमोरी लॉस्ट हो जाना मतलब क्या होता है? मतलब आप एक वर्ड में तो उसको वही बता पाओगे कि वो मेमोरी लॉस्ट है। बट अगर उसको सम एक्सप्लेन करें तो उनका कहने का ये मतलब है जो हमने बुक से या इन्फॉर्मेशन से जो कलेक्ट किया हुआ नॉलेज है, वो सब गायब हो जाना, और जो परमात्मा हमें समझाना चाह रहे हैं या परमात्मा हमें देना चाह रहे हैं, हम उस नॉलेज से कनेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। जैसे वेसल खाली हो तो ही उसमें भर पाते हैं, तो ये परमात्मा का चमत्कार है कि वो हमारी वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो इन्फॉर्मेशंस है, उसको डिलीट कर देते हैं टू पोर हिज डिवाइन नॉलेज, his intelligence, everything, like he's only he's. दीदी, फिर am I right? वेरी राइट, वेरी राइट, बहुत अच्छा। और फिर हम नहीं रहते, फिर वही रहते हैं, है ना? फिर अरुणिमा जी डांस करेगी तो साथ में मैं भी डांस करूंगी, और वो भी डांस कर रही है और मैं भी डांस कर रही हूँ, और रीना जी भी डांस करे, और हमें पता नहीं हम क्यों डांस करे, पर हम सब डांस कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर रहे हैं। वर्ड्स गायब हो जाते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है। मज़े ही मज़े। मुझे लग रहा है सबसे अज्ञानी मैं ही हूँ यहाँ कोई पे। ज्ञानी अज्ञानी जैसा कुछ है ही नहीं। हम सब अज्ञानी हैं और हम सब ज्ञानी क्या होता है? कुछ नहीं मतलब होता। मेरे इतने सारे क्वेश्चंस थे, जैसे आपका मेमोरी अच्छी लॉस बात हुआ है। तो फिर वो वापस अब रिटर्न कैसे हुए आप फिर? दूसरी बात कि अपने आप चीज़ें हैं ना, जैसे 1 सेकंड में मैं गायब हो गई। फिर जो भी प्रोसेस हुआ, मुझे शायद लगा 1.5 महीना हुआ, कि जब मैं गायब हुई तब से 1.5 महीना हुआ होगा, क्योंकि मैं 1 नवंबर 2013 को रास्ते पे चल रही थी, 2:22 हो रहा था दोपहर में। मुझे नहीं पता मैं वहाँ कैसे आई? वहाँ से शुरू हुआ, मतलब मुझे लगा ये क्या हुआ? मैं यहाँ पे कैसे आई? जैसे वो फ़िल्म में बताते हैं ना, मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? ऐसा सब, समथिंग डायलॉग ऐसा। तो मुझे पता ही नहीं, मैंने बोला ये कहाँ हूँ? और मैं जनरली रोड पे चलती नहीं हूँ। या तो मैं कार में जाती हूँ, तो रोड पे कैसे आई वो तो किसी को नहीं पता। मैं देख रही हूँ कि क्या हुआ, मतलब मोबाइल हाथ में था और मैंने देखा 2:22 1 नवंबर, और ज़्यादा मेरे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मतलब एक ज़ॉम्बीनेस होता है ना, एक एक सुषुप्त अवस्था, जिसमें ज़्यादा लाइट नहीं होती। फिर जैसे-जैसे कुछ-कुछ हुआ थोड़ा-थोड़ा, यू नो और तब मेरे हस्बैंड भी मेरे मतलब आउट ऑफ इंडिया चले गए थे। हाँ, आउट ऑफ इंडिया चले गए थे, और वो 9 महीने के लिए चले गए, तो मैं अकेली थी घर में। तो मैं गॉड्स ग्रेस देखो, सब कुछ ऐसे सेट हो गया ना, कि वो समय पे मैं मुझे डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं कोई, मैं टीवी भी नहीं देख रही थी, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और धीरे-धीरे भगवान ने अपने बेबी स्टेप्स लेकर मुझे सिखाते हैं जैसे बच्चों को, वैसे उन्होंने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा जो भी देना था वापस दिया, या फिर दिया। सो जीसस केम बैक, फिर शिव जी केम बैक, फिर माँ लक्ष्मी केम बैक, धीरे-धीरे जिसको आना था वो वापस आए, और मुझे अपना-अपना योगदान उन्होंने दिया। और उसके बाद ये जो शिवजी की बात मैं आपको बता रही हूँ, कि मैं लाइफ पर्पस हूँ। तो पूरे ब्रह्मांड में जब हम देखते हैं तो ब्रह्मांड दिखता है ना फिजिकली, तो दैट मीन्स उसका क्रिएशन हुआ है। और क्रिएशन कब होगा? जब उसका पर्पस होगा। देयर इज नथिंग विच इज पर्पसलेस, मतलब देयर इज नथिंग विदाउट द शिवा। अब आप मुझे ये एक्सप्लेन करके बताओ, जो मैं जितना एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ। अब इसको मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो दैट मीन्स जब बहुत सारे लोग कहते हैं शिवा ही सब कुछ है, नेचुरली विदाउट पर्पस कुछ मटेरियल बने, मतलब क्रिएशन ही नहीं होगा ना। एक विचार भी आता है तो पहले शिव, मतलब वो विचार का
पर्पस क्या है, सोच, वो जो विचार है उसका पर्पस क्या है, जो सोच है उसका पर्पस क्या है, तब फिर वो सोच होती है। तो कभी भी कुछ भी क्रिएट होने से पहले देयर इज अ नीड ऑफ पर्पस। तो वो वाला भी जो एक स्टोरी है जिसमें विष्णु भगवान और ब्रह्मा दोनों लड़ रहे हैं कि मैं बड़ा और मैं बड़ा। यू रिमेम्बर दैट स्टोरी? फिर शिवजी कहते हैं कि ठीक है, ये लाइट के स्तंभ पे जो पहुंच जाएगा उसके एंड पे वो बड़ा। और सदियां निकल जाती है और कोई पहुंच ही नहीं पाता है। व्हाई? बिकॉज देर इज नथिंग विदाउट अ पर्पस, है ना? देर इज नथिंग विदाउट अ पर्पस। तो देर इज नथिंग विदाउट अ शिवा, है ना? और जब भी हम अब आप महामृत्युंजय पाठ पढ़िए, और सिर्फ पढ़ो मत, उससे कनेक्ट हो जाइए, और वो बात क्या कह रहे हैं ना आपको, वो बोलिए, वो जस्ट ग्रहण करिए, उसको ग्रहण करिए। स्टडी इज ऑल्सो नॉट द राइट वर्ड, उसको ग्रहण करिए, उसको डाइजेस्ट करिए, है ना? और आप पढ़ेंगे तो महामृत्युंजय जाप जो है, एक वर्ड पढ़ते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे, तो उसमें ये आपको बात क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगी कि ओ माय गॉड, ये तो एकदम क्लियर बात निकल के आई है कि शिवजी जो है वो पर्पस है, द डिवाइन पर्पस, द हाईएस्ट पर्पस, है ना? सो ऐसी बात है। सो जब हम जो एनलाइटमेंट मुझे हुआ, मुझे कुंडलिनी से कोई लेना देना नहीं है, वो फिजिकल बॉडी में नहीं हुआ। दूसरा, ये सब जो चीजें मैं बोल रही हूँ कि मैंने, मतलब मेरे और भगवान के बीच में कौन आ सकता है? वो एक ही है, अहम। द मोमेंट मैं और आप एक हैं, मैं, ये मोबाइल, ये कपड़े, देर इज नो सेपरेशन, ठीक है? कोई सेपरेशन नहीं है। दैट इज दी रियलिटी, द ट्रूथ, दैट आप और मैं एक हैं, सिर्फ हम ऐसे ही मस्ती करने के लिए अलग अलग हो गए, सो दैट वी कैन एंजॉय दिस मोमेंट। नहीं तो एंजॉय कैसे कर पाता, मैं और मेरा हाथ कैसे एंजॉय कर पाता? तो मैंने बोला चलो तुम थोड़ा दूर चले जाओ, है ना? ऐसे ही आप और हम सब एक हैं, बट द मोमेंट में हम मिले तो मैं बड़ी हो गई और आप छोटे हो गए। तो क्या हुआ? आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम द ट्रूथ। तो आप, मैं, हम सब इकट्ठा होके हम ओरिजिनली क्या है? परमात्मा। बट जैसे मैं वन लेवल अप चली गई तो आई गॉट डिटैच फ्रॉम द परमात्मा। तो कुंडलिनी रास्ता जो है वो सिर्फ हमें मटेरियलिस्टिक लेवल पर ऐसे-ऐसे चीज़ें करवाता है, और जो हमें भ्रमित करता है, डिल्यूज़न में डालता है, और इवेंचुअली मैं अहम करने लगती हूँ। तो जितने भी लोगों को आपने पास्ट में देखा, जितने लोगों ने अहम किया, तो वो अहम करे, क्योंकि द मोमेंट मैं अहम करूँगी, मैं डिटैच हो जाऊँगी, तो मेरी मेरी कैपेसिटी कितनी है? जितनी मैं हूँ, और मैं परमात्मा तो हूँ नहीं अब। मतलब मैं पर्सनल परमात्मा हूँ, बट द रियल परमात्मा तो नहीं हूँ, तो मेरी जो कैपेसिटी है वो मेरी जितनी है। तो मेरी जितनी कैपेसिटी होगी उतना मैं, ये खिलौना उतना खेलेगा। फिर उसके बाद नीचे, है ना? इट्स बेटर टू प्ले एक साथ में। सब मिलके खेलते हैं, है ना? तो इसी तरह देयर आर सो मेनी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस क्वेश्चन। देयर आर सो मेनी अंडरस्टैंडिंग्स, एंड अभी जो चल रहा है कुंडलिनी एक्टिवेशन, इट इज अ सैड स्टोरी। ये सत्य नहीं है, कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं हो सकता है, वाइब्रेट हो सकता है, और अगर भूल से हल्का भी लीक हो गया कहीं पर, है ना? क्योंकि ये साधना कई-कई सालों से लोगों ने की है, कई जन्मों से की है, तो वो अगर लीक होता भी है तो उनको सबसे पहले तो, जब चक्रास क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, तो वहीं पे अटक जाता है, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फाइनेंशियल लॉसेस, रिलेशनशिप लॉसेस, मेंटल इश्यूज, ये सब होना बहुत ही ईज़ी है। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट साइड इफेक्ट्स, यू नो जैसे कि
कंस जो हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि कृष्ण जी ने कंस को मारा? किसी को पता है कंस की मृत्यु कैसे हुई? ये अहंकार से। यस, बट देन आपको टेक्निकल थोड़ा पता है? मतलब फियर और उसका बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में था। एग्ज़ैक्टली। तो क्या हुआ? क्योंकि देखिए, कुंडलिनी इज़ एन एनर्जी, ओके? इट इज़ अ एनर्जी सर्किट, वो एनर्जी है, उसका एक सर्किट होता है, एनर्जी हमेशा फ्लो करती है। द मोमेंट वो ब्लॉक हो गई तो वहाँ पे अटक जाती है। तो हुआ क्या कि जो देखो ब्लॉक कहाँ पे कैसे काम करता है। उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने जो बोला था कि उनकी बहन का 8वाँ पुत्र अच्छा। का सर्वनाश करेगा, तो वो एक ब्लॉक दैट इज़ द ब्लॉक। हाउ डू यू से इट्स अ ब्लॉक? उसका दिमाग वहीं घूम रहा है ना? अगर उन्होंने बोला ठीक है भई तुमको जो बोला है तुम बोलो, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो गई और वो भाई ने कुछ बोल दिया उसी को उन्होंने क्योंकि उनको डर था, डर इज़ आल्सो अ वेरी बिग ब्लॉक। तो हुआ क्या ये सब हो गया, 8वाँ बच्चा आ गया, सब उन्होंने बहुत मेहनत की मारने के लिए, वो अम, राक्षस के स्वामी थे, वो बहुत बड़े-बड़े कांड करते थे, पर ये छोटी-सी चीज़ नहीं कर पाए, क्या? खुद के ऊपर विजय। तो आगे होता है धीरे-धीरे जब 7 साल का या 6-7 साल के श्री कृष्ण होते हैं, ऐसे ही मिलने चले जाते हैं अपने मामा को। वो कुछ करने नहीं गए थे। वो सिर्फ मिलने गए थे कि मामा कैसे हो? पर वो द होल थॉट उस उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर दिया, है ना? तो ये पूरा एनर्जी सर्किट है, उन्होंने टू सेफगार्ड हिमसेल्फ उन्होंने खुद को एनर्जेटिकली ब्लॉक कर दिया। द मोमेंट ये ब्लॉक हो गया, जो एनर्जी घूम रही थी, कुंडलिनी एनर्जी व्हिच इज़ वेरी पावरफुल, उन्होंने उनके डर को बहुत ज़्यादा ब्लो आउट कर दिया। और फिर उनको जब अभी तक तो कृष्ण जी पहुँचे भी नहीं थे उनकी नगरी में, मतलब उनकी जगह पे, उनके जगह पर, फिर भी उनको हर जगह कृष्ण दिखने लगे क्योंकि जहाँ पे ब्लॉक है उसको ब्लो आउट कर देता है, मतलब वो बहुत बड़ा इट इज़ एनर्जी, इट डज़ नॉट हैव इंटेलिजेंस, व्हाई? बिकॉज़ इट इज़ कॉस्मिक एनर्जी और मटीरियल एनर्जी। तो उन्होंने ब्लो आउट कर दिया और उनको हर जगह ऐसा वो कृष्ण जी तो ऐसे खड़े थे या फिर वो कुछ कर भी नहीं रहे थे और अपने आप कंस ने खुद का ही कुछ तो भी विनाश कर लिया खुद से ही। और इस तरह से कुंडलिनी एनर्जीज़ जब होती है तो सबसे पहले तो हमें हमारा हम्बलनेस रखना पड़ता है, हमारा अहम कम रखना पड़ता है, अदरवाइज़ थिंग्स मे गो साउथ, है ना? तो दिस इज़ द वे इट इज़। जितने भी स्क्रिप्चर्स आप पढ़ेंगे, जैसे बहुत बड़े-बड़े स्क्रिप्चर्स हैं, जिसमें बहुत सारे राक्षस योनि के लोगों ने या राक्षसी लोगों ने शिव जी की पूजा की है या शिव जी का की साधना की है और उन्होंने फिर जब शिव जी ने बोला, "बोलो बेटा क्या चाहिए?" तो कहते हैं, "मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।" मतलब जो भी कि कोई मुझे खत्म ना कर पाए और फिर बाद में जैसे ही शिव जी बेचारे कहते हैं ओके भोले हैं ना, तो कहते हैं ठीक है ये रख लो तुम्हारा पर्पस कि तुमको कोई नहीं पराजित कर पाएगा, तो तुरंत 1 सेकंड में वो बुरे कैसे बन जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। है ना? तो पावर जो है वो यहाँ चढ़ जाता है और वो तो डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन्स? दी कुंडलिनी की बात कर रहे हो तो मुझे कुछ और नहीं दिख रहा, जस्ट आई एम एबल टू सी सम ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स हु आर डूइंग, बाकी सब मेडिटेशन कर रहे हैं, दैट्स इट। हाँ, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स, है ना? तो उनको पहले ही सिखाया जाता है कि हम्बलनेस, है ना? और बहुत रेयर केस में कुंडलिनी एक्टिवेट होता है क्योंकि ये समाज मतलब ये जो एनर्जीज़ है ना, हम कुछ भी ना खाएँ तो भी हमारी एनर्जीज़ जो है, वो ग्रॉस एनर्जीज़ ही है ना? हमारा बट पानी, हमारा हवा सब कुछ अशुद्ध है। सर हुँ। मेरा एक सवाल है, जैसे अगर 100 बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर गॉन टू डू दिस एक्टिविटी,
तो सबका होता है क्या? मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली इनटू दैट, राइट? सो सबका एक साथ में कुछ नहीं हो सकता फर्स्ट, सबका अलग-अलग लाइफ टाइम में हो सकता है। किसी का इस ज़माने में, इस लाइफ टाइम में होना लिखा है, कि वो प्रकट होगा में या वो एक्टिवेट होगा। वो खुद से ही एक्टिवेट होगा और वो जो चैंटिंग है, तो सबसे पहले तो सबको पता ही होने वाला है, मतलब सबको पता है कि ये एक्टिवेट होने वाला है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर किसी का होने वाला हो एक्टिवेट और उनके आजू-बाजू में या उनके गुरु को पता ना हो। और जब होने वाला है तो उनको सँभालने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा, क्योंकि चांसेस बहुत कम है, पर अगर मान लेते हैं इतने सदियों से वो अ, कंटिन्यूअसली साधना कर रहे हैं, तो अगर होना है, आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट से, बट व्हाट आई सी इज़ द वाइब्रेशंस आर इंक्रीजिंग। 100 मॉन्क्स साथ में बैठ के जब चैंटिंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो चैंट हो रही है, चैंटिंग से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ये फ्रीक्वेंसी से वेरी पिन पॉइंटेडली अगर कोई सच में विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंटेंशन कुंडलिनी ही एक्टिवेट करने वाली फ्रीक्वेंसी के, मतलब वो द पर्पस इज दैट, तो वो हो सकती है, चांसेस आर देयर। But actually, it is not they are doing Kundalini sadhana, they are doing something else, and Kundalini is the side effect of that, like that. हो सकता है। कभी-कभी मैंने बोला ना बहुत सारे जन्मों की साधना हो गई है और अभी सिर्फ़ एक एक पुश बाकी है। तो अभी ये बैठ के चैंट कर रहे हैं और वाइब्रेशंस हैं, सी वर्बल वाइब्रेशंस हैं और गोंग है और बहुत सारा जो म्यूज़िक है और जो भी चीज़ें हैं, वो सबसे नेचुरली बिकॉज़ इट इज़ अ फिज़िकल एनर्जी स्पार्क, इट इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो अगर स्पिरिचुअल है तो इंटरनल जाओ, फिजिकल है तो एक्सटर्नल जाओ। एंड द Okay. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज क्यों, व्हाई कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई। अगर किसी की हो गई तो कुछ कुछ ना कुछ उसमें एक बड़ा ये होगा ही, reason. रीजन होगा ही। यस यस Purpose. यस यस 100% पर्पस, इट कैन नॉट बी पर्पसलेस। Yeah, can I ask something? Small यस question. Once, हम लोग के घर में अखंड रामायण पाठ हो रही थी, तो पंडित लोग आए हुए थे, हम भी पाठ कर रहे थे, तो इट वाज लाइक ओवरनाइट चल रहा था। तो बीच में मैं थोड़ा-सा डोज़ ऑफ हो गई थी। उस टाइम में आई जस्ट सॉ कि अ, साईं बाबा इज़ साई बाबा इज is cooking, some food. एंड आई एम कलेक्टिंग दैट, ही इज गिविंग मी एक उसको लेके ना, ही इज सर्विंग मी दैट फूड और मैं उसको एक कटोरी में ले रही थी। तो माय क्वेश्चन इज कि हम रामायण की पाठ करा रहे थे उस टाइम में, हाउ कैन आई सी साई बाबा एंड गिविंग मी दैट, एंड आई वाज फीलिंग so good, I just woke up from the trance and I felt as if it really happened. तो ऐसा कैसे होता है कि किसी और का कुछ कर रहे हो और कोई और उधर, इज इट वो पॉसिबल? तो कोई और किसी और, वो सब हमारा परसेप्शन है। अच्छा। वहां पे तो सब एक ही है, तो देयर इज नो डिफरेंस, है ना। तो साईं रूप में आए, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड राम को एक्सेप्ट नहीं करेगा खाना बना के खिलाने में। तो, तो साईं बोलेंगे ठीक ये काम मैं कर लेता हूँ, मतलब मैं वो रूप में एंट्री मार के अरुणिमा को खाना खिला देता हूँ, मतलब शक्तिपात, शक्तिपात, है ना। तो वो आपको बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी, ये शक्तिपात जो है ना, वो जब बहुत हायर फ्रीक्वेंसी से आता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते, ये स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। हम्म, अ, साईं है, राम भगवान है, ये सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। तो जब स्पिरिचुअल बीइंग्स आपको शक्तिपात देते हैं, तो वो स्पिरिचुअल ही होता है, वो फिजिकल बॉडी का नहीं होता, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यस मैम, जैसे अरुणिमा जी ने बोला कि जब मैं वैसे मैं भी जब मेडिटेशन करती हूँ,
मतलब तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आई जस्ट डोज़ ऑफ, आई डोंट नो, एंड एकदम से झटका लगता है। कभी-कभी मतलब इट्स लाइक कि आई एम सिटिंग बट माय इंटरनल बॉडी इज रिवॉल्विंग, एंड वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रिवॉल्व हो रही है। तो वो इसीलिए क्या होता है मैम? इसीलिए सबसे पहले तो अब आप बैठ के मेडिटेशन नहीं करेंगे, है ना? ओ क्योंकि मेडिटेशन एंड ट्रांस, है ना? दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांस इज इंटरनल एंड स्पिरिचुअल, ओके। एंड मेडिटेशन इज माइंड एंड फिजिकल। सांसों पे ध्यान दो, ये करो, वो करो। बट व्हेन यू कनेक्ट बट स्पिरिचुअली, दैट टाइम आई वाज़ डूइंग जाप। कुछ भी तो होने दो, द मोमेंट यू डू इट विथ योर हार्ट एंड योर डीप कनेक्शन, तो आप स्पिरिचुअल पे चले जाते हैं। और स्पिरिचुअल पे चले जाते हैं तो आपका बॉडी इधर उधर गिरना शुरू हो जाता है, या फिर उसका कोई नो वजूद नहीं रहता, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, तो इधर उधर गिर। मतलब दैट टाइम आई वाज़ ट्राइंग टू कंट्रोल माय सेल्फ। मैं फिजिकली एकदम सीधे बैठी हूँ, बट हाँ, इंटरनली जो है, मैं इट वाज़ लाइक आई वाज़ रिवॉल्विंग। इतना मेहनत करने से अच्छा है आप लेट के करो, लेट के भी रिवॉल्विंग करेंगे। और फिर रिवॉल्विंग करते करते, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज योर बिकॉज योर माइंड इज एक्टिव, तो आप ट्रांस में जाते जाते रह गए। अगर आप ऐसा कभी भी है, अ, किसी कोई आपको डांटेगा नहीं कि आपने मैडम आपने चैंटिंग सोते हुए की। ये सब गलत धारणाएं हैं। हाँ, और भगवान को कोई गिनती से कोई लेना देना नहीं। क्यों गिन रहे हैं 108? राम भगवान को क्या मिलेगा 108 गिनेंगे तो? वो तो हमारा दिमाग है, खेलता रहता है बस। आप सिर्फ 2 बार राम बोलिए और गॉड्स ग्रेस है। 2 बार शिवा बोलिए और गॉड्स ग्रेस है। आज रात को हम सब जब सो जाएँगे तो गॉड्स ग्रेस होगा और हम अलग लेवल पे जाएँगे। क्योंकि अभी हम इतनी बातें कर रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है एकदम ज़ुम 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 ज़ुम। और जैसे हम आज रात को सोएंगे थोड़ा-सा, तो गॉड्स ग्रेस हो जाएगा, बहुत सारी कुछ चीज़ें, है ना? तो सुबह उठने की मेहनत मत करिएगा, या ज़बरदस्ती मत करिएगा खुद से कि चलो उठो, उठो जाना है। लेट इट बी, यू नो बस जस्ट होने दो, जो होगा। और ट्राई करिए आप सोते हुए ही मेडिटेशन करिए, तो आप ट्रांस में जाएँगे। अगर खड़े-खड़े मैम में ट्रांस में जाना क्या होता है? जो आप डोज़ ऑफ हो गए ना, वो। जब ट्रांस में जाते हैं तब हमें दिव्य अनुभूति होती है। मैम जैसे कभी-कभी मंदिर दिखता है। कुछ भी दिख सकता है, पर वो आपने देखा नहीं, वो दिखा। आपने इमेजिन नहीं किया, वो आ गया। तो ये क्यों होता है मैम? क्योंकि हम मेडिटेशन में लॉजिकल माइंड पकड़ के रखते हैं। फिर जैसे एक क्षणिक हमारा लॉजिक माइंड भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर द ट्रूथ आ जाता है और फिर आप अ, क्योंकि ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो लास्ट पास्ट लाइफ से एज़ अ भक्त, भगवान के भक्त। तो जब ये मौका जो है आप छोड़ना नहीं चाहते मिलने के लिए भगवान को। तो 2 सेकंड मिलती है, हाफ अ सेकंड मिलती है, आप जाके भगवान को मंदिर में मिल के आते हो। अगेन बिकॉज़ आपको लॉजिकल माइंड इज़ वेरी स्ट्रांग, तो आपको भगवान नहीं दिख रहा है, आपको मंदिर दिख रहा है। देखना है मतलब कनेक्ट होना है भगवान से। तो मैम इसीलिए भगवान भी दिखते हैं। गॉड्स ग्रेस है। जो मैम हो बट रहा है समझ में नहीं आता है, वो मेरी इमेजिनेशन है या क्या है? इसीलिए सो जाइए। आप लेट के चैंटिंग करें एंड देन वी विल गेट गेट बैक टू मी। ओके मैम। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था और मैं अपना गला पकड़ के बैठती थी, बिकॉज़ मैं बहुत गंदी तरह से इधर-उधर गिर जाती थी। बहुत ऐसे, ऐसे, ऐसे और सीधा मेरा गला अटैक हो जाता था ना। मेडिटेशन भी करना है, अ, गला भी पूरा-पूरा दिन-रात दर्द करता है, बिकॉज़ बहुत गंदी तरह से इधर-उधर गिर गया है। रो रही मैम हूँ। वंस हैपेंड विद मी मैम, मतलब एकदम से, मतलब आई वाज़ सिटिंग लाइक दिस और मेरा हेड एकदम से ऐसे हो गया। हाँ, फिर व्हाई वापस इज़ दिस आते-आते मैम? 20-25 मिनट हो जाते हैं।
तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लाइफ। तो मैं बहुत रोई कि मुझे मेडिटेशन करना है, ये दर्द बहुत हो रहा है मुझसे, और मैं तो ये भी पहनने वाली थी कॉलर, बिकॉज़ इट वाज़ लाइक रियली पेनफुल। तो भगवान कहते लेट के मेडिटेशन करो। मैंने कहा तो मैं भूल गई। फिर उसके बाद मैं अपना गला-वला सब सेट करके पूरा फिर मैं जाती थी। हाँ, अब कंफर्टेबल। इसलिए जब मैं लोगों को ट्रांस में ले जाती हूँ, मैं बोलती हूँ सो जाओ। क्योंकि फिर है ना दिस बॉडी बेचारा, उसको त्रास क्यों देना? व्हाई टू अननेसेसरी टॉर्चर दिस ब्यूटीफुल बॉडी, नो? उसको उसका काम कर, बिकॉज़ ये है तब तक हम ये सब एक्सपीरियंसेस कर पाएँगे। द मोमेंट ये गायब, तो भई सब कुछ एक ही हो जाएगा। फिर कोई ये भी एक हेल्प चाहिए। हाँ? एक हेल्प चाहिए कि मैं कांट किया बैठे-बैठे मेडिटेशन फिर से, मेरा पूरा शोल्डर पेन कर रहा है। तो पीछे और आगे दोनों तरफ। ठीक, मैं हीलिंग करती हूँ, बट आप ऐसा मत करो ना, लेट-लेट के करो। तो फिर मैं गायब हो जाती हूँ। अच्छा है ना, यू डोंट हैव टू, हम एंटरटेनमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना? गायब हो जाओ, दैट्स द बेस्ट, क्योंकि गायब होने के बाद बहुत सारे कांड करके आओगे फिर दूसरी जगह जाके, यस। है ना? ठीक So है you जी। then you will be used by God in whichever capacity He wants you to be. चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मा नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू सर्व। और हम जैसे अभी 11 बज के 11 तक के बाद आप डायरेक्ट ट्रांस में जाएँगे, और सुबह 6 बजे तक कंटिन्यूअसली आपके ऊपर काम चलता रहेगा, और जो भी गॉड्स ग्रेस होना है वो होता रहेगा, है ना? हाँ, उस टाइम हमें बस लेट जाना है, मतलब जैसे हम नॉर्मल सोते हैं वैसे ही हाँ, कुछ हाँ, हमें कुछ चैंटिंग कुछ नहीं, आप जस्ट सो जाए, इनफ है, ठीक? थैंक यू।